جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے، ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی، ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں، ان کو گولی مار دیتے۔ چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے۔ جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے، تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی۔ عدالتی نظام 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا تو انتشار بڑھے گا۔ اس ٹولے کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو ملک میں فسطائیت مزید بڑھے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں فوج اور عسکری قیادت کے خلاف بےہودہ سے بےہودہ بات کی گئی۔ مسلح فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد ہوں یا پھر عام دہشت گرد، دونوں کا نشانہ فوج ہی ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ہو رہی ہے۔ فیک نیوز پروپیگنڈا سے فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کو قانون اور مانیٹرنگ سے روکنا ہوگا۔ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں کا سدباب چاہتے ہیں۔ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ عزم استحکام ایک ہمہ گیر، ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے، جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے، لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس نیشنل سروائیول کا ایشو ہے یہ، ہم اس کو ابھی مذاق بنا دیتے ہیں بیکاز آف آر سیاست۔ عزم استحکام دیٹ کمپین، جو میں نے کہا کہ یہ ہمہ گیر مربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی، اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائٹی کو اور ملک کو پر اٹھائے گی۔ ایک سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم استحکام کو متنازع بنایا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہا حالیہ کچھ عرصے میں مسلح فوج کے خلاف پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا ہے۔ قومی وحدت کے معاملے کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نئے سرے سے کثیر الجہتی اور مربوط کارروائیاں ہوں گی، کسی کی نقل مکانی نہیں ہوگی، ریاست کی ریڈ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ عزم استحکام کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی، پولیس کی، صوبائی حکومت کی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے۔ بالکل پروٹیسٹ ہونا چاہیے، یہ جو واقعہ ہوا بنو کا ہوا اور واقعات ہیں وہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور عوام کے جذبات اور عوام کا غصہ ان دہشت گرد واقعات کے اوپر بالکل حق بن جانب ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ آپ مارچز کریں، امن مارچز کریں، پروٹیسٹ کریں دہشت گردی کے خلاف۔ بنو میں تاجروں کے امن مارچ میں مخصوص عناصر بھی شامل ہوئے۔ ریاست اور فوج کے خلاف نعرے بازی اور پتھراؤ کیا گیا۔ راشن کے ڈیپو کو بھی لوٹا گیا، ایک عارضی دیوار کو بھی گرایا گیا۔ واقعے سے 1 کلومیٹر دور بھی کچھ لوگوں نے فائرنگ کی۔ بنو واقعے پر انتشاری ٹولے کی جانب سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ نہتے لوگوں پر فائرنگ کیوں نہیں کی گئی۔ پرانی تصاویر نکال کر دکھائی جا رہی ہیں کہ بنو میں بچوں کو مار دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بنو واقعے پر فوج نے ایس او پیز کے مطابق ہی رسپانس کیا۔ امن اور امان فوج کی نہیں بلکہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انسدادی دہشت گردی عدالتیں بنائی گئی ہیں۔ فوج پر تنقید کا جواب اب دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کو اہم تنصیبات کے سامنے احتجاج کی کال کا اعتراف۔ اپنی گرفتاری پر جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔
कभी किसी को तोड़फोड़ और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं दी। अदयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कोई गलती नहीं की तो मुआफ़ी किस बात की, मेरे खिलाफ तमाम केसेस ख़त्म हो रहे हैं, लगता है नॉर्मल मुकदमात में अब मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। विफाक, पंजाब और केपी में अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है जमहूरियत को लपेट दें। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का शवाहिद की बुनियाद पर इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस और एफआईए की जानिब से पीटीआई मीडिया विंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान भी जब्त। पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर जेआईटी जल्द तश्कील दी जाएगी। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उमर अयूब ने DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग सियासी हुकूमत की नाकामी करार दे दी। कहा हुकूमत को मखसूस सीटों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। असद कैसर बोले बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े जिससे मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बादल छाने से गर्मी का जोर टूट गया। हवा चलने से हब्स भी खत्म। आज लाहौर में दिन भर मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। गुजरात में मूसलाधार बारिश का पानी घरों में दाखिल। हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में बारिश के बाइस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खानका डोगरा, मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। मूसलाधार बारिशों से अगले 3 दिनों में नारोवाल और सियालकोट में सैलाब का खदशा। महज 1 फुट सैलाबी पानी का रैला गाड़ी को बहा सकता है, पुल खतरनाक हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, केपी, सिंध में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। पंजाब असेंबली में पीटीआई अरकान का दोहरा मयार, अपने ही रिक्विजिशन पर बुलाए गए इजलास में शरीक न हुए। 11 अरकान की मौतली के खिलाफ ऐवान के बाहर एहतजाज करते रहे। 7 अपोजिशन अरकान ने TATA के हुसूल के लिए चुपके से हाजिरी लगवाई। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन से किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने का फैसला। 11 अरकान असेंबली की मौतली पर भी कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर मलिक अहमद खान मुलाकात में अहम फैसले। मलिक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐवान को धोखा देने की मुजरिमाना कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीटीआई ने सियासत में गलत रिवायात को परवान चढ़ाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक मंजूरी ली जानी थी। बानी चेयरमैन पीटीआई, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जानी थी। हाफिज नईमुर रहमान का तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं है,
हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसले करे तो कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी का सोशल मीडिया पर बयान। इस्लामाबाद में सनतकारों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्की मौशरी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कारोबार तबाह, सनतें बंद होती जा रही हैं। बताया जाए हुक्मरान तबका खुद कितना टैक्स देता है। इस्लामाबाद का धरना हुकूमत को मजबूर करेगा कि वो अवामी इस्तेहसाल बंद करे। गवर्नर पंजाब का पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत न करने का ऐलान। सलीम हैदर ने न्यूज़ के प्रोग्राम सहाफ़ी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस हवाले से फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कानून साजी से मुताल्लिक मतला नहीं किया गया। मरीम नवाज को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। सूबे में जो गलत तकर्रुरिया करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। वज़ीर आला हाउस केपी में बन्नू वाक़े पर जरगा। वज़ीर आला की जानिब से 48 घंटे के अंदर सूबाई एपेक्स कमेटी मीटिंग बुलाने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में जरगे के तमाम मुतालबात कमेटी मेंबर्स के सामने रखे जाएंगे। कुछ नया नहीं होने वाला, हुकूमत यही चलेगी, शर्जील मेमन का दावा। कुछ नासिर मायूसी फैलाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ भी दिया गया जो मांगा ही नहीं था। ज़ाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं होने चाहिए। मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने ही मुल्क पर हमले शुरू कर दे। वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स बस सर्विस का माड़ीपुर से टावर तक नया रूट आज से शुरू करने का ऐलान। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने से महरूम करने के लिए उसे ब्लॉक किया गया था। अदालत वेबसाइट की बहाली के अहकामात जारी करे। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खवातीन के हुकूक की तरक्की से मुताल्लिक मुश्तरका करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ऑडिट साल 2023-24 की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। महकमा दाखिला और कबायली उमूर और पीडीएमए से मुताल्लिक सवालात और उनके जवाबात दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से गारमेंट सिटी बनाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दिसंबर 2024 तक 2 इमारतों की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में लेडी एचिसन हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। मरीम नवाज की जानिब से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए हुकाम से जवाब तलब कर लिया गया। बिजली बनाने वाले महंगे IPPs मुआहदे एक फ्रॉड, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली सस्ती ना हुई तो फिर तमाम सनतें बंद और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप्टमा पंजाब के चेयरमैन कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FPCCI का हुकूमत से IPPs के मुआहदों का थर्ड पार्टी से फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। अहदेदारों ने कहा कि महंगी बिजली से अवाम, ताजिर और सनतकार सभी परेशान हैं।